Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is how to develop a positive attitude towards learning. Dear students, this is one of the important topics in the course contents of study skills. Okay, basically, this concept means that how we are learning, what is the role of positive attitude towards learning. Dear students, we will be studying this topic with reference to language learning, okay? Because we are the students of linguistics, or we can say we are the student of language. Let me share with you people outline of the lecture, that I'll introduce the topic, I'll provide some of the definitions of attitude, then we will define that what is positive attitude with examples, and language learning and attitude. It means that what is the role of attitude in language learning, functions of attitude, common attitudes, and we will conclude the same topic. Dear students, as we know that, like many other behavioral elements, attitude is one of the most important features of one's personality. Dear students, जो हमारी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के टू टाइप्स हैं. इंडिविजुअल की पर्सनालिटी या तो उसको इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी बोलते हैं या एक्सट्रोवर्ड पर्सनालिटी. इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी मीन्स दैट अ पर्सन who is not liking others, like एक ऐसा शख्स जो अदर लोगों के दरमियान रहना पसंद नहीं करता, ठीक है, जो क्राउडेड को लोगों के हुजूम को फेस नहीं कर सकता. ही आर शी is feeling anxiety, fear, okay, from the crowded. Like एक अदर पर्सन होता है ऑन द अदर हैंड एक्सट्रोवर्ड पर्सनालिटी वाला पर्सन जो हो. एक्सट्रोवर्ड पर्सनालिटी की जो क्वालिटीज़ हैं ये उस शख्स में होगी जो अदर लोगों के दरमियान रहना पसंद करता है, जो क्राउडेड को फेस कर सकता है, और ही आर शी इज़ फीलिंग happy while living among others, among his or her friends, or among his or her like colleagues, class fellows, teachers, okay. So likewise, one of the important features of an individual personality is attitude. Attitude matters a lot, okay. It includes psychological, emotional and behavioral aspects. बेसिकली एटीट्यूड का ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम साइकोलॉजी, ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी, और वी कैन से दैट like language psychology, we can say it leads to the level of involvement in some expected human activities, okay. जिस तरह हम कुछ एक्टिविटीज़ में, कुछ सरगर्मियों में हम इन्वॉल्व रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व रहते हैं, सो टू व्हाट एक्सटेंट वी आर लाइक involving ourselves in some of the human activities. Dear students, in foreign language learning context, there are various factors that influence the learning process, such as motivation, attitude, anxiety, learning, achievements, aptitudes, intelligence, age, personalities, etc. The matter of learner's attitude is acknowledged as one of the most important factors that impact on learning language. जिस तरह कि हम फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी लैंग्वेज लर्निंग को अफेक्ट कर रही है, ठीक है. जिस तरह कि मोटिवेशन, एटीट्यूड, एंजाइटी, लर्निंग, अचीवमेंट्स, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, एज, जो लर्नर की एज है, ठीक है, पर्सनालिटीज़, लर्नर की पर्सनालिटीज़. सो दीज ऑल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज. सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो दिया गया है वो एटीट्यूड को दिया गया है कि लर्नर का
जिस कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहा है या लैंग्वेज को लर्न कर रहा है, सीख रहा है, उसकी तरफ उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ठीक है, एटीट्यूड बेसिकली अभी हम एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं। एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज द वे एन इंडिविजुअल लुक्स एट थिंग्स और एक्टिविटीज। ठीक है, लाइक एक एक्टिविटी क्लासरूम में एक एक्टिविटी इन प्रोग्रेस है, उसकी तरफ एक लर्नर का ध्यान किया है, उसका एटीट्यूड किया है। आइदर ही और शी इज टेकिंग पार्ट in that very activity inside the classroom, or he or she is not taking part in that very activity inside the classroom. For example, some people, they do not like to take part. वो जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले स्टूडेंट्स हों, दे आर नॉट लाइक टेकिंग पार्ट इन द एक्टिविटीज़, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने आप तक महदूद होते हैं। ठीक है, वो दे आर नॉट फीलिंग वेल अमंग अदर्स, ग्रुप्स में वो खुश नहीं होते, वो अकेले में जब हो तो दे फील हैप्पी, so that's why they are not feeling well to take part, or they are, we can say that they will be not ready to take part in the classroom activities. या हम यूँ कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स वो टीचर्स की तरफ डिसलाइकनेस शो करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट लाइक द लैंग्वेज टीचर्स, दे डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स लैंग्वेज टीचर। ठीक है, आर लैंग्वेज की तरफ कुछ स्टूडेंट्स, लाइक डियर स्टूडेंट्स एट स्कूल और कॉलेज लेवल, अभी तो हम मतलब कन्फाइंड हो गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे, सो हम पश्तो लैंग्वेज भी पढ़ते थे, सम टाइम उर्दू लैंग्वेज भी पढ़ते थे। ठीक है, और इसी तरह इंग्लिश भी हम सीखते थे। सो अब अगर इंग्लिश की तरफ कुछ स्टूडेंट्स का नेगेटिव एटीट्यूड हो, सो हाउ दे विल बी लर्निंग इंग्लिश, आर समटाइम्स टूवर्ड्स द टारगेट लैंग्वेज कल्चर। जिस तरह की इन केस ऑफ अस लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज भी इंग्लिश लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है। सो टारगेट लैंग्वेज का जो कल्चर है, एक तो हमारा अपना कल्चर है ना, जो पश्तून सोसाइटी का कल्चर है, पख्तून कल्चर है, और एक इंग्लिश कल्चर है। ठीक है, अब एक चीज़ है जो एक कॉन्सेप्ट है और एक टर्मिनोलॉजी है जो हमारी कल्चर में नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश कल्चर में है। सो लैंग्वेज, हम कहते हैं कि लैंग्वेज आल्सो टेक्स द बर्डन ऑफ कल्चर। ठीक है, लैंग्वेज आल्सो कैरीज द बर्डन ऑफ कल्चर। जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हम कल्चर भी सीखते हैं। ठीक है, when we are learning language, we are also acquiring directly or indirectly the culture of the target language. Okay, we cannot like ignore or avoid totally the target language culture, because we can't separate language from culture or cultural from language. Okay, these two concepts, or these two entities or activities going side by side, they are inseparable in nature. अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एटीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज कल्चर की तरफ नेगेटिव हो, सो हाउ वी विल बी लर्निंग द टारगेट लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश इन केस ऑफ अस। ठीक है, सो attitude in learning, or attitude in learning of language or English language learning matters a lot. So attitude क्या है? Attitude is the way an individual looks at things or activities. It expresses the type of mood one has and interprets a person's saying and action. जो हम मतलब मूड बना लेते हैं, ठीक है, किसी शख्स की तरफ या किसी एक्टिविटी और किसी चीज़ की तरफ। ठीक है, एंड इंटरप्रेट्स अ पर्सन सेइंग एन एक्शन, जो एक्शन हम ले रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं उसकी तरफ। एटीट्यूड्स कुड बी वीव्ड एज अ टेंडेंसी to respond positively or negatively towards a certain thing, idea, person, situation, etc. डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ख्यालात हैं
हमारी दरमियान कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जिसकी तरफ हमारी टेंडेंसी, एक ट्रेंड डेवलप हुआ है कि लोग नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज नेगेटिव थिंकिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। एटीट्यूड के साथ एक्सपीरियंस भी आता है, ठीक है। और वी कैन से दैट एटीट्यूड इज लिंक्ड with experience. With experience, we are developing positive or negative attitudes towards concept. So simply we can say that an individual looks at something, how the way of looking of individual at something or some activities, that is called his or her attitude. Longman Dictionary of Contemporary English defined attitude as opinions and feelings that you usually have about something. Yes, so attitude is the name of opinions are and feelings. Okay, attitudes could highly influence how individuals approach many situations in life, including foreign language learning. Attitudes are closely related to our beliefs and are based upon our experience. Okay. Now, what is positive attitude? A positive attitude is a powerful tool that fosters enthusiasm, promotes self-esteem, ठीक है, that fosters enthusiasm. हम एक चीज को सीख रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, जो चीज़ मददगार साबित होती है वो एटीट्यूड है, और पॉजिटिव एटीट्यूड है, मुस्बत सोच है, मुस्बत रवैया है, ठीक है। प्रोमोट्स सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इस्टीम का मतलब है खुद एतमादी, ठीक है। सो अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स टारगेट लैंग्वेज लर्निंग, सो इट प्रोमोट्स सेल्फ इस्टीम. It creates an atmosphere conducive to learning, means the best possible atmosphere is created by the positive attitude for learning. Brown defined, or Brown uses the term attitude to refer to the set of beliefs that the learner holds towards member of the target language group and also towards his own culture. Dear students, जो बिलीव्स हम डेवलप करते हैं टुवर्ड्स द मेंबर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, जो टारगेट लैंग्वेज के कम्युनिटी मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश पीपल, ठीक है, उनकी तरफ एक कॉन्सेप्ट हम डेवलप करते हैं, कुछ सेट ऑफ थिंकिंग हम डेवलप करते हैं, या सेट ऑफ बिलीव्स हम डेवलप करते हैं, या उनकी कल्चर की तरफ, ठीक है, हम कुछ बिलीव्स डेवलप करते हैं। एक हमारा अपना कल्चर है जो पख्तून कल्चर है, नेटिव कल्चर है, होम कल्चर है, ठीक है, जो हमारी कंट्री में हम कल्चर को यूज़ करते हैं, जिस तरह हम बिहेव करते हैं, और एक टारगेट लैंग्वेज कल्चर है. सो इफ वी डिसलाइक टारगेट लैंग्वेज कल्चर, it like creates problems. This dislikeness creates problems in language learning or target language learning. Okay, in case of us English, अगर हम अपनी कल्चर को ज़्यादा फोकियत देते हैं और टारगेट लैंग्वेज की कल्चर को हम टोटली इग्नोर करते हैं, सो इट आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन टारगेट लैंग्वेज लर्निंग. Now, attitudes are actually internal states that influence what the learners like to do. The internal state is some degree of positive or negative or favorable, unfavorable reaction towards an object. Some of the important definitions are here of the attitude. Again, according to expert, attitude is a successful learner. A successful learner is the one who possesses positive attitudes towards the target language. ठीक है, सक्सेसफुल लर्नर वो होता है अगर उसका टारगेट लैंग्वेज की तरफ क्या हो, एटीट्यूड मुस्बत हो, पॉजिटिव हो, तो उसको सक्सेसफुल लर्नर कहा जाता है. द वे वी थिंक अबाउट समथिंग और समवन,
It is the again the important definition of attitude. Attitude is the way we think about something or someone, or it is the way we behave towards something or someone. ठीक है, जिस तरह हम behave करते हैं towards something or someone, this is called our attitude towards that very thing or that very person. Now, function of attitudes. The first one, value expressive function. It enables us to express who we are and what we believe in. ठीक है, who we are and what we believe in. Value expressive function है. ठीक है, knowledge function. It enables us to know the world. It enables us to know the world. Utilitarian function enables us to gain rewards and avoid punishment. So dear students, these are the functions, the three important functions of attitude, that how we are thinking about ourselves and how we are believing, okay, how we are believing on the things that we are learning. And our attitudes enable us to know the world, to gain knowledge, okay. एंड ऑन द बेसिस ऑफ जब हम नॉलेज को गेन करते हैं तो हम अपने आप को कुछ रिवॉर्ड देते हैं, या हम रिवॉर्ड हासिल करते हैं फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. हम जॉब को सर्च करते हैं. ठीक है, ये यूटिलिटेरियन फंक्शंस है. हम जॉब को सर्च करते हैं, हम जॉब गेन करते हैं. ठीक है, हम अदर की हेल्प कर सकते हैं अगर हमारी नॉलेज हो, उनको टीच कर सकते हैं. ठीक है, उनको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं. ठीक है, उनकी बिहेवियर और उनकी एटीट्यूड में हम चेंज ले आ सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एटीट्यूड ऑलवेज लिंक करते हैं हम रीज़न के साथ. ठीक है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या हम एक चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो कुछ रीज़न है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम खुश हैं, ठीक है, एक तो इंटरनल स्टेट है खुशी, हैप्पीनेस. ठीक है, अब हम कुछ नहीं करते, हम खुश हैं, ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये फुलिश एटीट्यूड है. ठीक है, अब अगर हम स्टूडेंट हैं, हम स्टडी करते हैं और फिर हम खुश होते हैं, यस, दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड. हम अंदर से खुश होते हैं क्योंकि हमने स्टडी की. ठीक है, हमने टॉपिक तैयार किया, हमने लेक्चर अटेंड किया, हमने टीचर को सुना. ठीक है, हमने मतलब 5 or 10 पेजेस रीडिंग की. सो नाउ वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड. सो नाउ दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड. ठीक है, अब अगर हम कुछ नहीं करते, हम कहते नहीं हम खुश हैं. ठीक है, अब अगर हम एक स्टेटस को गेन करना चाहते हैं, हम क्लास को टॉप करना चाहते हैं या कोर्स को टॉप करना चाहते हैं, हम मतलब चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर से पास हों, हम कुछ नहीं करते, हम सेटिस्फाई हैं, हम सोते हैं, हम खाते हैं, हम इंजॉयमेंट करते हैं, प्लेइंग गेम्स. तो ये क्या है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है. ठीक है, ये फुलिश एटीट्यूड है. अब अगर हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, खाते हैं, टीचर, स्टूडेंट्स, अदर क्लास फेलोज के साथ मिलते हैं और हम पढ़ते भी हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अब इनर से जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है, दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग. ठीक है, जब हम कुछ नहीं करते, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. वी डिसीव आवरसेल्व्स, and this is a foolish attitude. Again and again I'm saying there is difference between, or we can say that this is negative attitude. When we are not doing study, we are not preparing our topics, and we are satisfied, we are doing nothing, and we are satisfying ourselves. अब अगर हम काम कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, फिर हम सेटिस्फाई रहते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है. नाउ कॉमन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लर्निंग. इंग्लिश लैंग्वेज इज अ फॉरेन लैंग्वेज. ओके, सॉरी, इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज. हम सीखते हैं. एटीट्यूड टुवर्ड्स द लैंग्वेज फर्स्ट. इन अब हम लैंग्वेज की तरफ जो हमारा एटीट्यूड है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज English language to students?
how how would this language affect students' life? How students ever use the language? These questions and many more will determine the level of enjoyment, learning, and benefit one will acquire. The right attitude, once we have the right attitude, then everything else will fall in place. ठीक है? Learning will be easy, lessons will be enjoyed, and in the end we have a lot to benefit from the language. Dear students, first अगर हम language की तरफ, target language की तरफ like we are learning target language, so हमें पता होना चाहिए जो language है, that what is language, what is the target language really, ठीक है, ताकि हमारा उसकी तरफ attitude develop हो जाए. Like other people cannot give, yes, this is like facts about, these are facts about language are regarding attitude. Other people cannot give us the attitude needed, it comes from within us. We need to look at the language positively. For instance, it's important to know the language, it feels good to be able to us the language, sorry, it feels good to be able to use the language. ठीक है, फर्स्टली ये हम हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लैंग्वेज को डिफाइन करें कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है. ठीक है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, और हु आर द नेटिव स्पीकर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, द टारगेट लैंग्वेज, उनका कल्चर क्या है, ताकि हम इन चीज़ों के बारे में जान सके, फिर हम आगे जाके पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं. To have a positive attitude towards the language is a good start to learn the language. ठीक है, अगर हमारा एटीट्यूड टारगेट लैंग्वेज की तरफ क्या हो, पॉजिटिव हो, सो कहते हैं कि it is a good start to learn the language. The whole learning process would be much easier. We would not be shy to make mistakes, as we understand that making mistakes is a part of the learning process. Yes, अगर हम इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझे ना, कि अगर हम गलतियां करें, मिस्टेक्स हमसे हो जाए, लोग हम पे हंसते हैं, तो हंसे ना, कुछ नहीं होता. अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो, लोग हम पे हंसते हैं, ठीक है, हंसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं या लैंग्वेज को सीखते हैं या किसी स्किल को हम सीखते हैं, तो गलतियां हो जाती है. Yes, so their laughing at us will be nothing for us. We will be enjoying their laughing, okay? Will be very positive concept for us that they are laughing. Yes, so it doesn't matter if they laugh at us, because while learning a language, yes, people always make or they are committing mistakes, so it doesn't matter. We would also be able to accept being laughed at, corrected by others. Yes, जब हम किसी स्किल को सीखते हैं, लैंग्वेज स्किल है डियर स्टूडेंट्स, ये नॉलेज नहीं है, ये क्या है, स्किल है. और स्किल हम कैसे सीखते हैं, बाय प्रैक्टिस हम सीखते हैं. हम गलती करते हैं, गलतियाँ करते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको करेक्शन ढूंढते हैं, या अदर लोग हमें करेक्ट करते हैं. सो लैंग्वेज कम्स थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है, और प्रैक्टिस में हम गलती करते हैं, ठीक है, और अदर पीपल हमें करेक्ट करेंगे कि हम बुरा ना माने, क्योंकि लैंग्वेज एक स्किल है, स्किल में हम गलती करते हैं, गलती अदर्स हमारी गलतियों को क्या करते हैं, दे आर करेक्टिंग our mistakes. So it is very positive thing for us कि हम गलतियों पे खफा ना हो, हम खुश रहें. Other negative responses that might arise from people around us is a result of using the language. Yes, और भी नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होते, वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ अगर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करें, ठीक है. Now, attitude towards the language teacher. Yes, it's the most important thing here is having respect and no ill feelings towards the language teacher,
If he dislikes or disrespect the teacher, how would he go through the periods when the teacher is teaching? There are several alternatives. Like एक स्टूडेंट है, डियर स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट है, वो उसकी डिसलाइकनेस है टीचर्स की तरफ, ठीक है. जो लिंग्विस्ट टीचर, अ पर्सन हु इज टीचिंग अ लैंग्वेज इन द क्लासरूम, और लैंग्वेज टीचर है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है, और अगर हमारी उनकी तरफ क्या डिसलाइकनेस है, डिसरिस्पेक्ट्स हैं, सो हम कैसे सीखेंगे? A student, how a student will learn a language when he or she is having disrespect or dislikeness towards the language teacher? There are several alternatives. One, he can ignore the teaching. Yes, जो स्टूडेंट है जिसके डिसलाइकनेस है, simply he can ignore the teaching. Two, he can pretend that he is listening but actually doing something else. Yes, वो ऐसा दिखाई देगा. प्रिटेंड का मतलब हीले बनाना, ठीक है, बहाने बनाना. वो ऐसा बहाना बनाएगा कि वो लर्निंग की एक्टिविटी में क्या है, इन्वॉल्व है, लेकिन असल में वो इन्वॉल्व नहीं होगा. अच्छा, he can put down his head on the table and doze off. 4, he can create a fiesta in the class, ठीक है, enjoyment in the class, or he can do a disappearing act. Whatever it is that he does, it will just be a waste of time, not so much of the teacher, but definitely a whole lot of his, ठीक है. ये नुकसान किसका होगा? वो स्टूडेंट्स का होगा जिसने नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप किया है टुवर्ड्स द टारगेट लैंग्वेज टीचर, दैट इज इंग्लिश इन केस ऑफ अस. अदर concept है regarding the teacher, dear students. Now टिप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड. हम पॉजिटिव एटीट्यूड को कैसे डेवलप कर सकते हैं? लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू प्रेज योर एफर्ट्स, ठीक है. हमेशा आप अपॉर्चुनिटीज को देखें, अपने आप के लिए, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, ठीक है, ठीक है. लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू प्रेज योर एफर्ट्स, ठीक है. ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को जब आप पढ़ाते हैं टीचर्स के हवाले से, ये कहा जाता है, तो आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, ठीक है, ताकि उनकी जो एफर्ट्स है उनका प्रेजेस हो जाए. योर एजुकेशन इज़ योर जॉब. यस, आप यूँ कहे कि ये जो मैं एजुकेशन गेट कर रहा हूँ, ये डिग्री जो मैं कर रहा हूँ, ये फॉर द सेक ऑफ जॉब कर रहा हूँ, ताकि मैं फ्यूचर के लिए तैयार रहूँ, ठीक है. डेवलप योर इंटरेस्ट व्हाट यू आर लर्निंग, ठीक है, जो आप लर्न कर रहे हैं उसमें आप दिलचस्पी लें, इंटरेस्ट को डेवलप करें. टेल यूर सेल्फ टू विजुअलाइज बीइंग द ड्राइवर ऑन द बस ऑफ लाइफ, नॉट अ पैसेंजर. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है. टेल यूर सेल्फ टू विजुअलाइज बीइंग द ड्राइवर ऑन द बस ऑफ लाइफ, नॉट अ पैसेंजर. आप ड्राइवर बने, पैसेंजर न बने, ठीक है. सो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें. योर जॉब is your education is your job. Develop interest what you are learning and visualize that you are the driver of the bus life, ठीक है, are not a passenger. Dear students, we can conclude the topic. And attitude is a rather permanent way of thinking, feeling, and behaving towards something or someone. Attitudes could be viewed as a tendency to respond positively or negatively towards a certain thing, idea, person, situation, etc. Achievement in a target language relies not only on intellectual capacity but also on the learner's attitude towards लैंग्वेज लर्निंग. डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज लर्निंग के लिए सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं है कि एक शख्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है सो वो टारगेट लैंग्वेज को अच्छी तरह सीख सकता है. नहीं, बल्कि पॉजिटिव एटीट्यूड का भी बहुत ज़्यादा किरदार है लैंग्वेज लर्निंग में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स. Assalamu alaikum.